in continuation with the pharmacodynamics part and pharmacometabolic part, we are continuing towards drug docking concept. We are learning today the drug docking, a very We are important learning a topic very important topic for everyone for because drug everyone because docking drug needs to docking needs to be understand understand in in various various ways ways so that we so will be that able we will to be do able it to do it in in the a coming time. coming time. There are a There number are a of number of softwares softwares are available for available the for drug the drug docking. docking. You can You use can any use of any of them them for for the the analysis. analysis. Today we are Today we are using one using of one that of that software software for for better drug better drug docking. docking. So So what we what are we going are to going learn to learn today? today? We are We are actually actually learning learning four four major major points in points in drug a drug docking. docking. One is One known is as known as template template creation. creation. Second is Second is active active site site prediction. prediction. Third is Third energy energy calculation, and calculation and fourth is fourth the is the docking. docking. The The doing doing way way of of docking. docking. So So what what is is exactly exactly a a drug drug docking docking is is that we that will we will learn learn first. first. Now, A drug drug docking docking is is actually actually a a energy energy calculation calculation program. program. It's an It's an energy energy calculation calculation program. program. So it's an It's an energy energy calculation calculation program program available available with with us us for the for the calculation calculation of of interaction interaction between between interaction interaction between between protein protein and and drug. drug. Okay, Okay, but but it's the it's the interaction interaction between the between the protein and protein the and the drug. drug. Okay, Okay, but but instead of instead of drug, drug, sometimes sometimes it it may may have have some some kind kind of of an an inhibitor. inhibitor. It may It have may some have kind some of a kind of toxin. toxin. So So even even for for those those also, also, even even for for pesticides. pesticides, Okay. okay. So So any any kind of kind a of a chemical chemical which which is is foreign in foreign in nature nature can can be be studied studied by by this. this. Okay. Okay. Not Not only is only is that that many many times times protein-protein protein-protein docking is docking is also also been been investigated. investigated. Okay. Okay. But it But it requires a requires a very very high high computational computational power power that we that we cannot cannot do do here. here. Okay. Okay. So So what what is is exactly a exactly a drug drug docking is? docking is? It's an It's an energy energy calculation calculation program program which which understands the understand the interaction interaction between between protein and protein the and the drug, drug, or or maybe an maybe an inhibitor, or inhibitor, maybe a or maybe a toxin, maybe toxin, a maybe a pesticide, or pesticide, or maybe maybe another. another. Okay. Okay. Now what Now is what is happening happening actually? Now, now? whenever we Whenever are we are putting up putting any up any drug drug or or a a chemical chemical in a in a system, system, okay, in a system, system, system system means a means a body, body, human human body. body. Uh, Chemical Chemical remains remain specific, specific, remain remain specific specific in in its its action, action, okay, okay, for for the the target. target. So what So what happens happens whenever you are whenever you putting are up any putting up any chemical chemical inside of our inside of your body? body? Our Our chemical chemical which has which been has been administered in administered our in our body body remains remains target target specific. specific. Means Means they 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 bound to bound to the the specific specific protein protein or to or the to the lipid lipid or to or the to the DNA. DNA. Okay, Okay. so So this this specificity specificity is is very very important for important for that that chemical chemical to to act. act. Okay, Okay. and if And they if they act, act, then then they they will will give you give you a a response. response. Okay, Okay. so So for for any any chemical chemical interaction interaction with with the the target target molecule, molecule, which may which may be be protein, protein, which may be which may be protein, protein, which may which be may be lipid, which lipid, may which be may be DNA or DNA or maybe maybe other. other. So So if if that that drug drug or or chemical is chemical is active, active, having having some some specificity specificity for for those those molecules molecules like like this, this, then they then they will will in in response, response, in response, they will they will give give some some kind of kind of a signal a or signal some kind or of some kind of output that output can be that can be calculated. calculated. Okay. Okay. Now, Now, why why drug drug docking is docking so is so important? important? Whenever I am Whenever saying I'm drug saying drug docking, docking, why it is why so it is so important? important? Because Because uh, uh, docking docking will will help you help to you to select select the the best best drug. drug. Okay, Okay, if we if are we are talking about talking only about only drug drug docking, docking, then then what is what the is the main main aim of aim the of the drug drug docking? docking? It will It will help you help to you to select the select the best best drug drug for for the the binding binding with with the the template. template. Okay, template means Okay, what? template Here is means the what? Here target. is the Okay, target. so Okay, what is why so we are what is doing why we drug are doing docking? drug docking? This will This give you a will give you chance a to chance select to the select the best drug best drug for binding for with the binding with the template. template. Okay, Okay, now now
Question comes why we have to find out the best drug. Okay, okay. Why not all drugs can be used? Okay. बेस्ट ड्रग ही आपको क्यों चूज करना है? सारे ड्रग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के खिलाफ, उसको क्यों नहीं यूज कर सकते? The answer lies in its specificity, okay, and expulsion. Specificity and expulsion means आपका जो भी ड्रग है, ड्रग whenever it remains specific, okay, it will go and bind to that target. Okay, it will go and bind to that target one. Okay, that what is called as specificity. Means your drug will not bind to any other molecule, or if even though they binds with a low affinity. Okay, and that's why we need to select the best score drug first. Means that first thing is that it should have a specificity. They should bind to the targeted molecule only. Most of the time, it's the protein. It should not bind to the any other protein other than intended target molecule. Second thing is expulsion property. Expulsion property means interaction energy. What is this expulsion and what is this interaction energy? Whenever your protein lie in a cell, they will always remain interaction with other molecules, right? They will remain in interaction with other molecules. So if your protein, which is a target for you for the drug, is available in a cell and if they are remaining in interaction with the other molecules, they are sharing their functional groups. They are sharing their functional groups on which your drug can bind. Okay. So अगर आपका कोई सेल के अंदर कोई प्रोटीन है जो हमारे लिए टारगेट है ड्रग्स के लिए, बट वो सेल जो वो प्रोटीन जो है वो सेल के अंदर में एक पर्टिकुलर इंटरेक्शन में रहता है, तो इंटरेक्शन किसी और मॉलिक्यूल के साथ में रहता है, ठीक है, रिजल्टेंट उसके जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो शेयरिंग में है, शेयरिंग विद द अदर मॉलिक्यूल, एंड दैट्स व्हाई योर ड्रग cannot bind easily with the target protein. Okay, cannot bind easily with target protein. Why this is so? Because protein already के bond बना चुका है किसी protein के साथ, या किसी drug के साथ, या किसी molecule के साथ. Resultant आपके drug का binding होना बहुत मुश्किल है उसके लिए. इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन का जो इंटरेक्शन है, जो अदर देन ड्रग है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, वीक करना पड़ेगा. तो वीक करना पड़ेगा. वीक करने के लिए क्या होना चाहिए, ड्रग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. ड्रग नीड्स स्ट्रांग फंक्शनल ग्रुप्स. ड्रग नीड्स स्ट्रांग फंक्शनल ग्रुप. ये फंक्शनल ग्रुप जैसे ही उस प्रोटीन के पास में आएंगे, तो उस प्रोटीन का जो इंटरेक्शन है ऑलरेडी किसी मॉलिक्यूल के साथ में, वो वहां से वीक हो जाना चाहिए, डिस्प्लेस हो जाना चाहिए, और किसके साथ हो जाना चाहिए, ड्रग के साथ, यानी ड्रग के फंक्शनल ग्रुप के साथ. एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज एक्सपल्शन. यानी प्रोटीन का एफिनिटी कम कराना पड़ेगा अदर मॉलिक्यूल्स के लिए, और यहाँ पे एफिनिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी फॉर द ड्रग्स. ओके, एफिनिटी आपको क्या करनी पड़ेगी, अदर मॉलिक्यूल्स के लिए कम करके ड्रग्स के लिए बढ़ानी पड़ेगी. ये करने के लिए आपके पास में ड्रग्स में ही वो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. ठीक है, ड्रग शुड हैव दैट प्रॉपर्टीज. ये ड्रग की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है. ठीक है, जब हमने कल देखा था कि ड्रग्स के फंक्शनल ग्रुप आप बना सकते हो अलग अलग टाइप. ठीक है, तो ड्रग्स के जो फंक्शनल ग्रुप्स है, that gives them the specificity. That gives them the specificity, and also they give them the shape. That's why they remain
specific in action. remain Specific in action. Okay. ये हमने पॉइंट सारे समझ लिए। Then, जब ड्रग डॉकिंग कर रहे हैं तो ड्रग डॉकिंग जो है ये दो actually तीन टाइप की होती है। Okay. Where you will use the program, Okay. आप क्या करेंगे, you are using some programs। तो ये तीन टाइप के प्रोग्राम्स आप बनाएंगे। एक होता है सॉलिड डॉकिंग, ठीक है, एक होता है सॉलिड डॉकिंग, दूसरा होता है सॉलिड लिक्विड डॉकिंग, और तीसरा है लिक्विड डॉकिंग। ओके, तो जब डॉकिंग हम पढ़ रहे हैं तीन टाइप के प्रोग्राम्स आपके पास हो सकते हैं। वन इज नोन एज सॉलिड डॉकिंग, another is solid liquid docking, and third is the liquid docking। चलिए देखते क्या है एक करके। जब कोई भी डॉकिंग हम करते हैं तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो होती है हमारे पास में दोनों का 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए, यानी प्रोटीन का एंड ड्रग का। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर भी सेव किया था और ड्रग का भी 3D स्ट्रक्चर सेव किया था। और वो कौन से फॉर्मेट में सेव किया था? कौन से फॉर्मेट में सेव किया था 3D स्ट्रक्चर? कोई बताएगा? PDB। यस करेक्ट, PDB फॉर्मेट। हमेशा याद रखिए आपको अपने 3D स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन के और ड्रग के वो PDB फॉर्मेट में सेव करने हैं। ठीक है, हमारे पास अब दोनों फाइल्स अवेलेबल है। ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स है 3D स्ट्रक्चर में अवेलेबल है, बट इसमें इवन दो वो 3D स्ट्रक्चर में अवेलेबल है, बट वो उसकी जो रोटेशन पॉसिबिलिटीज है, रोटेशन पॉसिबिलिटी, ठीक है, स्ट्रक्चर्स की रोटेशन पॉसिबिलिटी, यानी अगर मैं 3D स्ट्रक्चर लेता हूँ प्रोटीन का, ठीक है, तो उसमें कम से कम 400 अमीनो एसिड है और मैं मान के चलता हूँ हर एक अमीनो एसिड में 6 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो ये हो गया कम से कम आपके पास में 2400 एटम्स आपके पास में आ गए। मान के चलते हैं मिनिमम कंसीडर करते हैं 2400 एटम का जो मोबिलिटी है, ठीक है, ये कंप्यूटर से कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट थ्रू कंप्यूटर। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है 3D स्ट्रक्चर के मोबिलिटी को पता है, यानी नेचर में वो मूव करते रहता है। तो नेचर में जब वो मूव करते रहता है वो यहाँ पे यानी कंप्यूटर में मिमिक करना बहुत मुश्किल है। यानी आप प्रोटीन को लिक्विड फॉर्म में कंसीडर करें तो ये लिक्विड फॉर्म में कंसीडर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट इज इट्स मोबिलिटी या रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उसको सॉलिड कहा जाता है। तो अगर आपका डॉकिंग एसएस टाइप का है यानी सॉलिड डॉकिंग है, तो उसमें आपका प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो भी कौन सा है? सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है यानी वो मूव नहीं करेगा, वो फिक्स है, लॉक एंड की मॉडल जैसा। इसमें लॉक भी सॉलिड है, की भी सॉलिड है, बस जस्ट दे आर गेटिंग फिट इनसाइड, दैट्स इट। उसमें कोई भी स्ट्रक्चर मूव नहीं हो रहा है। फिर उस स्ट्रक्चर प्रोटीन स्ट्रक्चर भी सॉलिड है, उसी के साथ साथ में ड्रग का स्ट्रक्चर भी क्या है? सॉलिड है। दोनों स्ट्रक्चर जो है सॉलिड है। ठीक है, ये हिस्ट्री है। ठीक है, ये हिस्ट्री है, यानी पहले ऐसा ही होता था कि ड्रग को भी सॉलिड रखा जाता था और प्रोटीन को भी सॉलिड रखा जाता था। ड्रग भी मूव नहीं करती थी ज्यादा अलोंग देयर फंक्शनल ग्रुप, उसी तरह प्रोटीन के भी कोई फंक्शनल ग्रुप मूव नहीं करते थे इन द नेचर और इन स्पेस। फिर आया सॉलिड लिक्विड डॉकिंग। सॉलिड लिक्विड डॉकिंग में क्या हुआ कि आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है अभी भी क्या है? सॉलिड है, पर आपका ड्रग जो है, ड्रग स्ट्रक्चर जो है वो क्या बन गया है? लिक्विड। यानी आपका प्रोटीन के अंदर जब डॉकिंग चल रहा है तो ड्रग मॉलिक्यूल मूव करेगा।
ठीक है, उसके सारे फंक्शन मूव करेंगे। रिजल्टेंट जो भी पोजेस आएंगे, जो भी पिक्चर्स आएंगे, वो लिक्विड फॉर्म में या फ्लेक्सिबल ड्रग के फॉर्मेट में आएंगे। और ये काफी कुछ नेचर ग्रोथ है ना, काफी कुछ नेचर ग्रोथ है, यानी आप नेचर से बिल्कुल क्लोज एक्टिविटी कर रहे हो, बट दैट टू इन अ कंप्यूटर। पर इसमें भी एक ड्रॉबैक ये है कि आपका प्रोटीन अभी भी सॉलिड फॉर्म में है, प्रोटीन मूव अलोंग द स्ट्रक्चर नहीं कर रहा है। फिर इससे और थोड़ा हाई लेवल आ गया जिसमें है लिक्विड लिक्विड डॉकिंग। आपको समझ में आ जाएगा, प्रोटीन भी लिक्विड है और ड्रग भी क्या है, लिक्विड है। ये सबसे अच्छा डॉकिंग है। तो जो क्वालिटी डॉकिंग होती है वो इसी से होती है, लिक्विड लिक्विड डॉकिंग से, जहाँ पे आपका प्रोटीन भी लिक्विड है और ड्रग भी लिक्विड है, दोनों मूव कर रहे हैं। और ये इसके लिए आपको जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर पावर, ठीक है। और वो पैरेलली अगर आप कंप्यूटर लगाते हो तो वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अभी लिक्विड लिक्विड डॉकिंग के ऊपर भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया कि क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो अभी हमने ये समझ लिया कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डॉकिंग, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड एंड लिक्विड लिक्विड। जो आज हम करने वाले हैं वो है सॉलिड लिक्विड डॉकिंग, जिसमें प्रोटीन सॉलिड रहेगा, प्रोटीन मूव नहीं करेगा अलॉन्ग इट्स स्ट्रक्चर, बट लिक्विड सॉरी ड्रग जो है वो अपना लिक्विड फॉर्म में रहेगा, यानी वो मूव कर पाएगा, उसका एंगल ऑफ रोटेशन फ्री रहेगा। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द डॉकिंग? सबसे पहली बात है आपके पास में एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका नाम है डॉकर, ठीक है। सबसे पहले आपके पास में डॉकर होना चाहिए, देन आपके पास में फाइल्स होनी चाहिए। दो फाइल्स आपके पास लगी हैं, वन इज द पीडीबी फाइल ऑफ प्रोटीन एंड सेकंड फाइल जो है ऑफ ड्रग, ठीक है। अब आप एक से ज्यादा ड्रग्स की भी फाइल्स बना सकते हैं डॉकिंग से, ठीक है। डॉकिंग सॉफ्टवेयर में फैसिलिटीज होती है कि एक से ज्यादा ड्रग्स का फाइल भी आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, एंड देन आप कंपैरेटिव चेक कर सकते हो कि क्या क्या इफेक्ट हुआ सबका कैसे। देन आउटपुट क्या आता है? आउटपुट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि इंटरैक्शन पॉइंट ऑफ द ड्रग्स, इंटरैक्शन पॉइंट्स होते हैं ड्रग्स के, interaction points of the drug with amino acids of protein, वो पता चलते हैं, ठीक है। यानी आपका ड्रग एग्जैक्टली कौन से अमीनो एसिड से इंटरैक्ट कर रहा है ये पता चलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और हम एक्टिव साइट ढूंढ के ही करते हैं, इसलिए हमारे को वो अमीनो एसिड के ऊपर इंटरैक्शन चाहिए जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अगर वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और उनके साथ में अगर ड्रग इंटरैक्ट कर रहा है तो ये बहुत अच्छा स्टडी हो सकता है, क्योंकि उससे ही वो ड्रग उसके उस प्रोटीन की एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा या एक्टिवेट करेगा। देन आउटपुट में और एक चीज आती है, दैट इज एनर्जी, यानी बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास मिलेगी। बाइंडिंग एनर्जी यानी क्या? ड्रग एंड प्रोटीन जब इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बाइंडिंग एनर्जी। तो वो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आपको मिलेगी किलो कैलोरी पर मोल। बाइंडिंग एनर्जी जो मिलेगी आपको वो मिलेगी किलो कैलोरी पर मोल में, और आप आराम से उसका किलो कैलोरी पर मोल। तो होगा क्या, जब आप ड्रग नंबर 1, 2, 3 ना 4, 5, 6 ऐसे अलग अलग ड्रग्स चेक करेंगे तो हर एक ड्रग की एक क्या आएगी, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी आपकी रिप्रेजेंट की किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल। एंड रिजल्टेंट आप ये प्रूव करेंगे दैट व्हिच ड्रग इज हैविंग better docking is बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। कौन से ड्रग का सबसे अच्छा बाइंडिंग या आउटपुट आपको मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या रहेगी आपके पास में, आपको एक प्रोटीन टारगेट करना है, उसकी फाइल आप निकाल के लगाएंगे,
कहाँ से प्रोटीन का फाइल मिलता है बताएंगे कोई? कहाँ से उठा के लाते हैं प्रोटीन का फाइल? कौन से डेटाबेस से? प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर कहाँ मिलता है? Can somebody tell? Nobody's telling. Very easy. RCSB PDB से हम करके लाते हैं ना। तो RCSB PDB का डेटाबेस हम इस्तेमाल करेंगे। वहां से हम क्या डाउनलोड कर लेंगे? PDB का स्ट्रक्चर ऑफ द। देन ड्रग कहाँ से बनाएंगे? ड्रग कहाँ से उठा के लाएंगे? ड्रग कहाँ से बनाएंगे या कहाँ से पिकअप करेंगे उसको? कल हमने बनाया था ना ड्रग सॉफ्टवेयर में से, ठीक है? जैसे एग्जांपल है ऑफिस, ठीक है? एज जैसे सॉफ्टवेयर सूट बना के लाएंगे। तो हमारे पास में दोनों चीजें अवेलेबल होती है। तो RCSB PDB जो है ये हमेशा आपको 3D स्ट्रक्चर देगा, और ड्रग बनानी है तो केम ऑफिस या केम स्केप से आप बना सकते हैं, ठीक है? अगर आपका प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर में RCSB PDB में नहीं है तो आपको मॉडल कर सकते हो, ठीक है? आप उसको मॉडल कर सकते हो। मॉडल करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं? कौन सा सर्वर यूज किया था हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन में? कौन सा यूज किया था? PS2 प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन सर्वर ना, ये यूज किया था ना PS2 प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन सर्वर। यहाँ से आप मॉडल करके भी प्रोटीन निकाल सकते हो। तो 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के सोर्सेज दो हो सकते हैं। एक तो आप RCSB PDB से उठा सकते हैं, you can collect from this, or you can model your protein if its 3D structure is not available, that too in a tertiary structure by using the PS2 protein structure structure। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है? सबसे पहला है कि आपके पास मिलेगा डॉकर सॉफ्टवेयर, सेकंड फाइल्स, दो फाइल्स लगेगी, एक PDB, सेकंड जो है वो ड्रग में एक से ज्यादा ड्रग हो सकते हैं, ठीक है? ये तीन चीजें आपको ड्रग में करनी है। हमने ये भी चेक कर लिया है कि डॉकिंग करने के लिए तीन टाइप की डॉकिंग होती है, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड और लिक्विड लिक्विड। हम कौन सी इस्तेमाल करने वाले हैं? कौन से को इस्तेमाल करने वाले हैं? सॉलिड लिक्विड डॉकिंग। यस, सॉलिड लिक्विड। क्यों सॉलिड लिक्विड यूज करने वाले हैं, कोई बता सकता है? इसलिए क्योंकि लिक्विड लिक्विड डॉकिंग के लिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशनल पावर लगता है, ठीक है? जो हमारे इस लोकल लैपटॉप से नहीं आ सकता, क्योंकि हर एक एटम जब मूव करेगा ना तो उसके एनर्जी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो हमारे जो लैपटॉप का जो प्रोसेसिंग पावर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम उसका कैलकुलेशन कर पाए इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड लिक्विड डॉकिंग। स्पेशली क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है? पर ड्रग जो होता है वो छोटा मॉलिक्यूल होता है, इसलिए उसको लिक्विड फॉर्म में भी हम आराम से उसके फंक्शन का जो एंगल ऑफ रोटेशन है उसकी एनर्जी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो याद रखिए सॉलिड सॉलिड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सॉलिड सॉलिड आउटडेटेड है, उससे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, ठीक है? तो जो प्रोग्राम आज इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है अर्गस लैब। हम यूज करने वाले हैं अर्गस लैब। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, आप भी अपने डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अर्गस लैब में आप डॉकिंग खुद कर पाएंगे, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम आवर वेबसाइट। आपको शोकेस कर देता हूँ कहाँ से आपको डाउनलोड करना है।
ये आपका वेबसाइट है अर्गस लैब का। यहाँ आने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड अर्गस लैब। डाउनलोड इसको कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलिए इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपके पास सॉफ्टवेयर, ये आपका अर्गस लैब है, ये डॉकिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ज़्यादा कुछ बताता नहीं है, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आप दो विंडोज है दिख रहे हैं आपको, एक एक्शन विंडो है और एक डेटा विंडो है, ग्रे एंड व्हाइट कलर की। तो अब हम क्या करेंगे, हमें आज एक अलग एक ऐसा टाइप का डॉकिंग करना है जहाँ पे एक सिचुएशन है, वो सिचुएशन आपको पहले समझ लेनी पड़ेगी। देखिए पहली सिचुएशन क्या है देख लीजिए। एग्जाम्पल 1, हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर कौन से मेथोडोलॉजी से डिटरमाइन करते हैं, बताएंगे? प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कौन से मेथड से डिटरमाइन करते हैं? कौन सी केमिकल टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करते हैं? 3D स्ट्रक्चर। प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर कौन से मेथड से डिटरमाइन करते हैं? कैट नहीं, 3D स्ट्रक्चर है ना, ओरिजिनल 3D स्ट्रक्चर लेबोरेटरी में कौन से मेथड से हमने डिटरमाइन पढ़ा था ना हमने? जिसमें क्रिस्टल बनाते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। यस, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है ना। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये एग्जांपल 1 में थोड़ा समझ लेना क्या किया। ठीक है, देखिए जब हम पढ़े थे उसमें एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करते वक्त, तो हमने ये पढ़ा था कि प्रोटीन का प्यूरिफाइड फॉर्म चाहिए, एंड दैट टू इन अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। ठीक है, प्यूरिफाइड भी चाहिए और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म चाहिए। जैसे ही आप उसको प्यूरिफाइड या कॉन्सेंट्रेटेड कर लेंगे तो वो अभी भी बफर में अवेलेबल है, राइट? इसमें अवेलेबल है बफर में, अभी भी वो क्रिस्टलाइज्ड नहीं हुआ, प्यूरिफाइड और कॉन्सेंट्रेटेड बफर में। इस बफर में क्या करते हैं ना कोई लोग, अगर कोई ड्रग इन्वेस्टिगेशनल है ना, इन्वेस्टिगेशनल है या वेरी वेल नोन है, ठीक है, या फिर कोई टॉक्सिन है या कोई पेस्टिसाइड है, तो इस बफर के सॉल्यूशन में ना उसको पुट अप कर देते हैं। दे इनॉकुलेट दिस ड्रग या फिर पेस्टिसाइड या फिर टॉक्सिन, ठीक है, वो उसके अंदर डाल देते हैं। तो क्या है ना, क्योंकि प्रोटीन प्यूरिफाइड फॉर्म में है और अवेलेबल है रिएक्शन के लिए इन द बफर, तो प्रोटीन विल ट्राई टू इंटरैक्ट विद द ड्रग और पेस्टिसाइड एंड टॉक्सिन। तो जब वो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, तो उनकी बाइंडिंग हो रही है। ये नेचुरल है, ये हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करते, नेचुरल है, बाइंडिंग हो रही है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका ड्रग जो है वो कहाँ जाके बाइंड करेगा, कहाँ जाके बाइंड करेगा वो? एक्टिव साइट पे। यस, एक्टिव साइट। तो क्या हो गया, ये नेचुरल सर्च हो गया। क्या हो गया ये? नेचुरल सर्च। नेचुरल सर्च है, नेचर में खुद ढूंढ लिया, यानी ड्रग में खुद ढूंढ लिया कि मुझे कहाँ जाके बाइंड करना है। ठीक है, और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से बाइंड फॉर्म में रहेंगे, यानी वो जब इंटरेक्शन में रहेंगे, तभी मैं क्या करूँगा, उनका जो बफर है उसको क्या कर देंगे, क्या करते हैं बफर को धीरे धीरे क्या करते हैं बताइए? एल्यूट। हाँ, इल्यूट करते हैं, इवापोरेट करते हैं, बराबर है, समझ में आ गया। इवापोरेट करेंगे, रिजल्टेंट क्या बनेगा? क्रिस्टल्स। वेरी गुड, क्रिस्टल बनेगा। क्रिस्टल बन गए, बट ये क्रिस्टल प्योर होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा?
कॉम्प्लेक्स। Yes, it is in a complex form. यानी अब आपके पास में जो क्रिस्टल बनेगा वो ड्रग प्लस कौन रहेगा? प्रोटीन, डिसाइड प्रोटीन। यस, दैट प्रोटीन जिसके साथ में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स। तो ये जो दोनों हैं ये आपको ऐसा 3D स्ट्रक्चर देंगे कि जब आप उसको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में पुट अप करेंगे तो आपको ड्रग भी दिखेगा और प्रोटीन भी दिखेगा। रिजल्टेंट आपको उसकी एक्टिव साइट नेचुरली मिल जाएगी। आपको सर्च करने की जरूरत नहीं सॉफ्टवेयर में। जहाँ ड्रग इंटरेक्शन में होगा वही उसकी एक्टिव साइट है। ठीक है, तो ये प्रोटीन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब समझ जाइए कि अगर आपको कोई ड्रग कॉम्प्लेक्स में है आरसीएसबीपीडी में तो वो किसी के साथ में इंटरेक्शन में वो कुछ भी हो सकता है। प्रोटीन हो सकता है, सॉरी ड्रग हो सकता है, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, टॉक्सिन हो सकता है या कोई अदर मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो हम आज जो एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं उसमें यही एग्जाम्पल है कि आपका जो प्रोटीन है वो ऑलरेडी क्या है? कॉम्प्लेक्स। यानी किसी एक पर्टिकुलर ड्रग का ऑलरेडी उसके साथ में इंटरेक्शन है। क्लियर? अब हम क्या करने वाले हैं? हम क्या करने वाले हैं? हम एक डॉपर लेंगे। डॉपर क्या करता है? डॉपर क्या करेगा? पोजीशन, आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ ड्रग। यस, और एक्चुअली वो डॉकिंग कर रहा है, बराबर है। आइडेंटिटी यस, पोजीशन ऑफ ड्रग तो है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, पर वो डॉकिंग कर सकता है। इसलिए हम डॉकर लेंगे और डॉकर को बोलेंगे कि आइडेंटिफाई द ड्रग फर्स्ट। ठीक है, हम क्या बोलेंगे उसको? सबसे पहले आइडेंटिफाई द ड्रग इन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आइडेंटिफाई द ड्रग इन अ कॉम्प्लेक्स। अब मुझे ये बताइए, अगर मुझे सही में एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, डॉकिंग सॉफ्टवेयर, तो प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स को डिस्टिंग्विश कैसे करें? क्या बताएंगे हम सॉफ्टवेयर बनाते वक्त? बताएगा कोई? समझ रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन? मुझे डॉकर को बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर किसको ढूंढना है? किसको ढूंढना है? ड्रग को ढूंढना है, यानी प्रोटीन के अंदर जो ड्रग है वो ढूंढना है। ठीक है, तो मान के चलिए कि आप वो सॉफ्टवेयर बना रहे हो, यानी आप डॉकर बना रहे हो। ठीक है, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करोगे? प्रोटीन को इससे अलग करना है ना ड्रग से, तो आप क्या 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 स्ट्रेटेजी रखोगे? थोड़ा दिमाग लगाइए तो आपको आ जाएगा। कैसे बनाया होगा उन्होंने? प्रोटीन एंड ड्रग स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी तो बाद में आ गई। मुझे अभी हमारा क्वेश्चन क्या है सबसे पहले कि डॉकर, जब मैं एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है, आप जब घर में आते हो, बराबर है, तो आपको अपने घर में मम्मी पापा भाई बहन सब दिखते हैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते ना, बराबर, यही है करके, हाँ है ना? यस। जब आपके घर में कोई नया मेहमान आता है जिसको आज तक आपने देखा नहीं, ठीक है, तो आप उनको अलग है ऐसा क्यों बोलते हो? अलग है ऐसा क्यों बोलते हो? अलग है, अपीयरेंस अलग है। बराबर है ना, अपीयरेंस अलग है। तो सबसे पहली बात है कि आपने आपके ब्रेन को एक डिक्शनरी देके रखी हुई है, बराबर है, हाँ है ना, कि ये कैरेक्टर वाले प्रोटीन है और ये कैरेक्टर वाले ड्रग है। तो प्रोटीन के कैरेक्टर क्या है? प्रोटीन के अंदर कौन होता है? अमीनो एसिड्स। वेरी गुड, यही आंसर चाहिए था। समझे क्या आपको? समझ गया? यानी अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास कौन है? अमीनो एसिड्स। हाँ, तो वो कौन है? प्रोटीन। यस, है ना, और जिसके पास नहीं है वो कौन है? ड्रग। समझा?
तो आपको सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना पड़ेगा कि आपको 20 अमीनो एसिड्स लिखने पड़ेंगे स्क्रिप्ट में। मैडम ने सिखाया था, याद होगा तो। इफ नॉट, इफ यस, याद होगा? याद है किसी को? लूपिंग लगाई थी मैडम ने, एलानिन, वैलिन, फिर ऐसा एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो जितने, अगर आप बता रहे हो कोई प्रोटीन है तो उसके अंदर कौन रहेगा? अमीनो एसिड्स। और अगर अमीनो एसिड्स के अलावा जो भी है वो कौन हो जाएगा? ड्रग। तो सॉफ्टवेयर इस तरह से बनाया जाएगा, समझे आप? तो सॉफ्टवेयर आप बनाओगे और सॉफ्टवेयर के बेस पे स्क्रिप्ट बनेगी, और स्क्रिप्ट क्या कर पाएगी? डिस्टिंग्विश कर पाएगी। जब डिस्टिंग्विश कर पाएगी तो आराम से वो बताएगा कि दिस इज प्रोटीन। यानी जब वो प्रोटीन बता रहा है तो वो हर एक एटम ऑफ प्रोटीन प्रोटीन है करके बता रहा है, ठीक है? समझ रहे हैं क्या आपको? डिस्टिंग्विशन जब कर रहा है तो बताएगा कि जो जो एटम्स है प्रोटीन के, वो हर एक एटम प्रोटीन है करके बताएगा। और फिर दूसरा डिस्टिंग्विशन क्या करेगा? ड्रग का। तो ड्रग के हर एटम कौन है? हर एक एटम कौन है? ड्रग है, ऐसा बताएगा। और जैसे ही उसको पूरा रिकॉग्नाइज हो जाएगा, वो डिस्टिंग्विश करने की जितने भी आइटम्स जो प्रोटीन के ये अलग हो गए, ये आइटम्स अलग हो गए, ड्रग्स के अलग हो गए, तब वो आपको बताएगा कि फिर आप एक कमांड बोलोगे, क्रिएट फाइल फॉर द सेम। यानी आप क्या बनाइए? उसके लिए फाइल्स बनाइए। तो पहली फाइल जो बनेगी वो बनाइए प्रोटीन की, और दूसरी फाइल किसकी बनेगी? ड्रग्स। ड्रग्स की। वेरी गुड। तो सबसे पहली बात यही करेगा वो सॉफ्टवेयर, समझ रहे हैं क्या? कब? जब वो प्रोटीन किस में रहेगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स में रहेगा, समझ रहे हैं ना? पर अगर आपका प्रोटीन प्योर है, ठीक है, एंड ड्रग फाइल डिफरेंट है, तो ये फॉर्मूला लगेगा जो हमने ऊपर लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा? अगर आपका प्रोटीन प्योर है? No, sir. नो, इसके लिए तो अलग स्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी। नो, डिफरेंट स्क्रिप्ट। समझ रहे क्या? सो एज पर द क्वेरी, एज पर द डेटा अवेलेबल, आपको अलग अलग स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी पड़ेगी, समझ रहे? तो आज हम जो देखने वाले हैं वो ये वाली स्ट्रेटेजी है, जहाँ पे आपका ड्रग, ठीक है, एंड प्रोटीन इसमें है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो अब कैसे काम करेंगे समझिए। सबसे पहली बात, हम डॉकर को बोलेंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई द ड्रग एंड प्रोटीन, ठीक है? तो पहले ड्रग और प्रोटीन को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है? फिर जब वो आइडेंटिफाई कर लेगा, फिर सेकंड कमांड हम डॉकर को देंगे, मेक फाइल ऑफ द ड्रग एंड प्रोटीन, ठीक है? समझा? और अब ये फाइल ऑफ ड्रग कैसे बनाएगा? यहाँ पे दो चीजें होगी, कॉपी द ड्रग, ठीक है, कॉपी द ड्रग एंड मेक अनदर कॉपी, ठीक है, कॉपी द ड्रग एंड मेक अनदर कॉपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा समझ लीजिए। हमारे पास में एक ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर कौन है ऑलरेडी? कौन है? ड्रग। ड्रग है, यानी वो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है, उसने अपनी जगह ऑलरेडी लेके रखी हुई है। बट ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसने दिया आपको? नेचर ने दिया या सॉफ्टवेयर ने दिया? जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स है वो किसने दिया? नेचर। यस, करेक्ट है ना, नेचर। यानी नेचर बता रहा है कि अगर आपका ये प्रोटीन इस ड्रग के साथ इंटरैक्ट करेगा तो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके वो क्या करेगा? बाइंड हो जाएगा, ठीक है? अब मुझे ये देखना है कि मैं जो ड्रग डॉकिंग कर रहा हूँ, मान के चलता हूँ इसी ड्रग का डॉकिंग करता हूँ, इसका नाम लिखता हूँ ड्रग 1, इसी ड्रग का फिर से प्रोटीन के साथ में डॉकिंग करता हूँ,
ठीक है। तो नेचर से वो कितना क्लोज आता है, ठीक है, नेचर से कितना क्लोज आता है ये मुझे देखना है। एग्जैक्ट कॉपी कर पाएंगे क्या हम, बताओ मुझे नेचर का, एग्जैक्ट नेचर का कॉपी कर सकते हैं कि जहां वो नेचुरली बाइंड हुआ है वहां पे हम कंप्यूटर से भी एग्जैक्टली वहीं पे बाइंड करवा सकते हैं, इतनी पॉसिबिलिटी है क्या? आपको क्या लगता है? हाँ या ना? चांसेस थोड़े कम है। सर एग्जैक्ट नहीं हो सकता, थोड़ा तो चेंज रहेगा, माइनर रहेगा। यस, यही उन्होंने भी सोचा, यही रिसर्चर ने सोचा, और इसके लिए उन्होंने एक टर्म डिजाइन की जिसका नाम है RMSD। क्या है? RMSD, इसका फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। यानी नेचर में, नेचर का तो हमको पता चल गया कि ये प्रोटीन इस ड्रग के साथ में उस पर्टिकुलर जगह जाके बाइंड करता है। अब हमको ये देखना है कि मेरा सॉफ्टवेयर है ना, मेरा डॉकर कितना एफिशिएंट है, ये कितने क्लोज पहुंच सकता है उस नेचर के, ठीक है। मुझे पता है कि वो 100% तो क्लोज नहीं जा सकता, पर जितना क्लोज जा सकता है उतना अच्छा है, उतना मेरा डॉकर उतना अच्छा है या सक्सेसफुल है। और वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कौन सा? RMSD, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, और ये होता है एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो एक उसका डेविएशन जो है वो एक एंगल में या रूट के अंदर में हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जब आपका ड्रग प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन में आएगा तो डेफिनेटली आपके पास क्या आएगा, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी आएगी जो नेचर से बहुत लो है। तो ड्रग एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का उपयोग क्या है ये थोड़ा समझ गया। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, ठीक है, अगर आपके पास में आपका टारगेट प्रोटीन ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स विद अदर ड्रग है, ठीक है, अगर आपका प्रोटीन जो टारगेट है ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स विद अदर ड्रग है, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हमको क्या मिल जाएगा, बताओ। हमको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कौन सी चीज है? एक्टिव साइट। वेरी गुड, एक्टिव साइट। हाँ, हमको एक्टिव साइट डायरेक्टली मिल जाएगी। करना क्या है, जहां ड्रग बाइंड हुई है उस ड्रग को यहाँ से हटा दो, तो वो कैविटी क्रिएट हो जाएगी वहां पे, राइट, वो कैविटी क्रिएट हो जाएगी, यानी वो एक्टिव साइट है, और वहां हमारा ड्रग का बाइंडिंग स्टडी करना है, समझ रहे, बाइंडिंग स्टडी करना है। इसका सबसे बड़ा ये एडवांटेज, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब ये हम करके देखेंगे। आज हम करने वाले हैं ड्रग एंड प्रोटीन इन कॉम्प्लेक्स वाले का टॉपिक, ठीक है। कल हम करेंगे विदाउट कॉम्प्लेक्स वाले का। चलिए गो फॉर द सेम। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा अर्गस लैब। ये एक डॉकिंग सॉफ्टवेयर है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हेल्प होता है, हेल्प मोड में जाइए सबसे पहले। हेल्प मोड में ट्यूटोरियल्स, जो आपको आसानी से क्या स्टेप फॉलो करने हैं यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। ट्यूटोरियल में जाइए। So this is your tutorial. तो ट्यूटोरियल में आने के बाद में थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दें ताकि हमको दोनों विंडोज दिखे प्रॉपर्ली। सो यहाँ पे आपके पास में सारे ट्यूटोरियल्स हैं, जितने भी लर्निंग है वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है।
जितना भी, और हमारा मेन एम जो है डॉकिंग करना है, इसलिए डॉकिंग के लिए आपको 7th और 8th ऑप्शन चूज करना है। okay? हमारा जो आज का एम है वो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का, तो ये है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का फर्स्ट वाला, डॉकिंग अ सेरीन प्रोटीनेज इनहिबिटर बेंजामिडीन डॉक इनटू बीटा ट्रिप्सिन, ये वाला आपको देना है 7th नंबर, याद रखिएगा। तो कैसे करना है ये यहाँ से हम शुरुआत करें। तो सबसे पहली बात समझ लीजिए कि कौन क्या क्या है। Here we are doing molecular docking of benzamidine inhibitor. तो बेंजामिडीन इनहिबिटर ये कौन है बताइए, प्रोटीन है या ड्रग है? Drug. ड्रग, करेक्ट। एंड बीटा ट्रिप्सिन जो है वो है आपका टारगेट यानी प्रोटीन। सो व्हाट यू विल लर्न, आप बेंजामिडीन इनहिबिटर को बीटा ट्रिप्सिन में डॉक करने की कोशिश कर रहे हो। तो कैसे करना है यहाँ पे लिखा हुआ है। In this tutorial you will learn how to set up a docking calculation. इस सॉफ्टवेयर में आप डॉकिंग कैसे करते हैं ये सीखोगे। You will actually dock the inhibitor whose name is benzamidine into a target protein whose name is serine protease beta trypsin. Okay. Then docking calculations attempt to place ligands into binding site. आप जो भी डॉकिंग कैलकुलेशन सेट करोगे उसके बेसिस पे बाइंडिंग साइट के अंदर आपका लिगैंड पुट हो जाएगा। लिगैंड यानी कौन? लिगैंड यानी कौन बता सकता है कोई? लिगैंड यानी ड्रग, ठीक है। इसके बाद आपको ड्रग वर्ड नहीं आएगा, इसके बाद आपको हमेशा वर्ड आएगा लिगैंड, ठीक है। याद रखिएगा लिगैंड यानी ड्रग। सो डॉकिंग कैलकुलेशन विल अटेम्प्ट टू प्लेस लिगैंड इनटू बाइंडिंग साइट। सो बिफोर यू कैन डॉक अ मॉलिक्यूल, ठीक है, इतना आसान नहीं है वो बोल रहा है। सबसे पहले क्या करिए, जो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी समझा दिया है, क्या करना पड़ेगा, क्या करना है सबसे पहले? आइडेंटिफाई प्रोटीन एंड ड्रग। And water. हाँ, यानी डॉकर को हमको ये बताना है कि कौन सी फाइल या कौन सा मॉलिक्यूल ड्रग है और कौन सा मॉलिक्यूल प्रोटीन, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए, तो देखिए बिफोर यू कैन डॉक अ मॉलिक्यूल you first need to define the atoms that makes up the ligand. यानी आपको सबसे पहले आपके प्रोटीन फाइल में से उन सारे एटम्स को डिफाइन करना पड़ेगा जो लिगैंड है, and then all the binding sites on the protein where the drug binds, और फिर क्या इंटेक करना है, बाइंडिंग साइट, ठीक है, बाइंडिंग साइट ऑन द प्रोटीन, समझ रहे? So the structure we will use is from the Brookhaven protein data bank. हम कहाँ से यूज कर रहे हैं, PDB से यूज कर रहे हैं, and already contains a co-crystallized benzamide. समझ गया co-crystallized यानी क्या? यानी क्या है वो प्रोटीन, क्या है वो प्रोटीन? पायल कनेक्शन लॉस झाला बरं, चेक कर बरं।
Network problem. So now I am audible. Yes, sir. Okay, Screen is visible. Drug and protein complex. Yes, sir. Okay. So now what we are doing, what the software is telling to us, that now you have to take a already co-crystallized benzamide. Okay, that we have already taken. We will make what they are doing. See, your PDB file is having a two actual files. One is of benzamide and another is of trypsin molecule, okay, of the protein. So what they are saying is to you, we need to make a copy of the inhibitor. यानी आपको एक इनहिबिटर की कॉपी करनी पड़ेगी. देखिए मैंने जैसे यहाँ बताया था, ठीक है, मेक अ फाइल ऑफ द ड्रग एंड द प्रोटीन एंड देन क्या करना है, कॉपी द ड्रग एंड मेक अनदर कॉपी. यानी अब एक्चुअली आपके पास कितने ड्रग्स होंगे, कितने ड्रग्स की कॉपी हो गई, दो. एक ऑलरेडी क्रिस्टलाइज्ड है जो अपनी जगह बैठा हुआ है नेचर में, और एक आपने उसी का कॉपी बनाया. ये थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है. हमारे पास में कोई दूसरा ड्रग नहीं है, जो ड्रग ऑलरेडी क्रिस्टलाइज्ड है प्रोटीन के अंदर, उसी का हम क्या बना रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं. ठीक है, उसी का एक कॉपी बना रहे हैं और उसी का डॉकिंग करके देखना चाहते हैं. क्यों हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम क्या है, डेविएशन चेकआउट करना कि नेचर से सॉफ्टवेयर ने किया हुआ डॉकिंग कितना क्लोज है, कितना दूर है. इसलिए हम ये चीज करते हैं. ठीक है. Then once you do that, then dock it in a protein and compare the dock structure with the X-ray structure, that is known as RMSE. Okay, root mean square deviation. तो चलिए हम will start doing this. यहाँ पे जैसे जैसे दिया आपको वहाँ पे वैसे वैसे फॉलो करते जाना है. ठीक है. So first thing is open the structure file. आपको आपकी 3D स्ट्रक्चर की फाइल ओपन करनी पड़ेगी. तो अगर आपका पास में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो आपको आपके लैपटॉप में डाउनलोड कर लेना पड़ेगा. RCSB में जाके उस फाइल को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. यहाँ पे ऑलरेडी एक चीज अवेलेबल है, ओपन द प्रोटीन डेटा बैंक फाइल whose name is 3ptb.pad. ठीक है, कौन सी है, 3ptb located in the tutorials docking beta trypsin folder. ठीक है, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा. देखिए कहाँ जाना है, देखिए इसमें दो विंडो याद रखिए. इसमें क्लिकिंग करते वक्त थोड़ा ध्यान देना पड़ता है. जिसके ऊपर में डार्क कलर है यहाँ पे वो क्लिक्ड है, और यहाँ देखिए लाइट ग्रे है तो ये अभी क्लिक नहीं है. इस तरह से आप थोड़ा समझ सकते हैं. ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ते पढ़ते आगे आगे ज्यादा रहना पड़ेगा. तो देखिए अब यहाँ पे आ गए, ये डार्क हो गया, नहीं एक्टिव मोड में. फाइल में जाएंगे, ओपन में जाना है. ठीक है, देखिए यहाँ लिखा ना ओपन द फाइल डेटा में, तो ओपन में गया. ओपन में जाने के बाद में आपको ये फाइल लोकेट करनी, कौन सी, ट्यूटोरियल्स डॉकिंग बीटा ट्रिप्सिन. जनरली ये फाइल जो होती है ये सी ड्राइव में होती है. ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स में जाना पड़ता है. प्रोग्राम फाइल्स में आने के बाद में
ये डेफिनेटली प्रोग्राम फाइल्स में सेव होगी, सी में ही सेव होती है। ठीक है, देखिए यहाँ आर्गस लैब लिखा हुआ दिख रहा है, इसके अंदर है वो फाइल। ये थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है आपके लिए, पर आप हमेशा याद रखिए विंडोज के सी में जाके प्रोग्राम फाइल्स में ही मिलेगा। आर्गस लैब में जाएंगे और यहाँ से शुरुआत हो रही है, देखिए ट्यूटोरियल्स, यहाँ पे दिख रहा है ट्यूटोरियल्स, क्लिक करेंगे। फिर आ गया डॉकिंग, डॉकिंग करेक्ट है। फिर कौन है, बीटा ट्रिप जिप फोल्डर, इसको क्लिक करिए। फिर उसके बाद उसकी फाइल आ गई जिसका नाम है 3ptp.exe। देखिए यहाँ पे 3ptp.exe क्लिक करेंगे एंड ओपन। तो ये आपकी फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ये कौन सी फाइल है, इसके अंदर कौन कौन है बताएंगे? इसके अंदर कौन कौन है? प्रोटीन एंड ड्रग। वेरी गुड, प्रोटीन एंड ड्रग यानी कॉम्प्लेक्स है, अभी हमको उसको ढूंढना है। अभी नेक्स्ट टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क क्या है हमको? ये जो विंडो है ये कौन है, ये पूरी विंडो कौन है, इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इस सॉफ्टवेयर को क्या बोले अभी हमने बताया ना, क्या नाम है इसका? आर्गस लैब। नहीं, ये तो उसका रियल नेम है, पर है क्या ये बाय फंक्शन है कौन है, सॉफ्टवेयर कौन है? डॉकर। वेरी गुड, डॉकर। ये डॉकर है, ठीक है। आपने डॉकर के अंदर में क्या पुटअप कर दी, क्या पुटअप कर दी? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फाइल, हाँ मैंने उसकी फाइल पुटअप कर दी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पुटअप कर दिया, मैंने उसके पास में उसको अपने फाइल दे दी। अब अगला टास्क क्या था हमारे पास, ये आ गया ना। अगला काम क्या है, अगला काम क्या है? ड्रग और प्रोटीन की फाइल बनाना है। हाँ, ड्रग और प्रोटीन की फाइल बनानी है। हमको नहीं बनानी है, हमको बताना है। किसको बताना है? डॉकर को। डॉकर को। तो डॉकर को बताना पड़ेगा कि अब ये हमारी फाइल है, इसके अंदर कौन है, कौन दो मॉलिक्यूल है? ड्रग एंड प्रोटीन। ड्रग एंड प्रोटीन, करेक्ट, ड्रग एंड प्रोटीन आपको बताना है। तो देखिए अब यहाँ पे आ गए हम, यहाँ तक कहाँ तक आ गए देखिए, दिस इज अ पीडीबी फाइल, so make sure you select the correct file type in the file opening dialog box। हमने करेक्ट कर लिया सब कुछ। Now make sure the molecular tree view tool is visible। ठीक है, देखिए ये है molecular tree view tool, ये दिख रहा है छोटा सा यहाँ पे, ये है molecular tree view। देखिए अगर ये ऑफ रहा तो यहाँ पे आपको एक विंडो नहीं दिखती, ठीक है। तो आपको अगर ऑपरेशन करना है यानी आगे जाना है तो इसको ऑन रखना पड़ेगा। तो वो बोल रहा है मेक श्योर योर मॉलिक्यूल ट्री व्यू टूल इज विजिबल, ईदर सिलेक्ट टूल डैश मॉलिक्यूल ट्री और क्लिक ऑन टू दिस। तो हमने अभी क्लिक किया, देखो ये क्लिक किया, हमने फॉलो किया। अब हमारे पास में मॉलिक्यूलर ट्री व्यू टूल ओपन है, हमारे पास में फाइल भी आ गई। अगला काम क्या करना है देखिए, और सिस्टमैटिक करना पड़ता है, इसमें एक भी गलती किया तो डॉकिंग नहीं होगा। एक्सपांड द ट्री व्यू टूल व्यू ऑफ 3ptp। इसका जो स्ट्रक्चर है इसको और डिटेल में समझने के लिए इसकी यहाँ मास्टर फाइल है, दिख रही छोटी सी ब्लू कलर वाली 3ptp, ये उसकी मास्टर फाइल है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस बटन है, जिसको अगर मैं क्लिक करूँ तो ये एक्सपांड हो जाता है, ठीक है। जस्ट क्लिक इट, ऐसा वो बोल रहा है expand the tree view of 3ptp, expand the tree view of 3ptp, मैंने इसको क्लिक करें and open up the residue miscellaneous folder। देखिए रेसिड्यू फोल्डर दिख रहा है आपको, रेसिड्यू फोल्डर जिसके पास प्लस है तो ओपन करिए एंड देन मिसलेनियस फोल्डर को ओपन करिए, कर दिया। टू शो द बेंजामिडीन रेसिड्यू, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन है, बेंजामिडीन रेसिड्यू। देखिए शो बेंजामिडीन रेसिड्यू, तो देखिए कुछ इसी तरह यहाँ पे भी दिखाया गया है। देखिए
सेम ऐसे ही है। शो द बेंजामिन रेसिड्यू। अब ये ओपन हो चुका है। अब अगला काम है मेक द लिगैंड एंड द बाइंडिंग साइट ग्रुप। अब आप लिगैंड को बताइए कौन लिगैंड है और कौन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट क्लिक ऑन वन पेन, लेफ्ट क्लिक ऑन वन पेन, ये जो वन पेन है ना इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करता हूं, देखा जैसे मैंने क्लिक किया कुछ चेंज हुआ है क्या, क्या चेंज दिख रहा है, कोई बताएगा क्या चेंज दिख रहा है। ब्लू की जगह रेड कलर आया। हाँ पर स्ट्रक्चर में देखो ना, स्ट्रक्चर में दिख रहा है क्या कुछ, स्ट्रक्चर में कुछ दिख रहा है, अरे कुछ दिख नहीं रहा है। सर येलो ये कलर थोड़ा एक्सपांड हो गया। हाँ वो कौन है, सर ड्रग। हाँ वो ड्रग है, बेन है ना, बेंजामिन इसका नाम है ना बेन, वो ड्रग है, वो वहां बैठा हुआ है। अरे बाकी का कौन है, प्रोटीन। प्रोटीन। अब हमको पूरा प्रोटीन डॉकिंग में नहीं लेना है, हमको सिर्फ कौन सा पार्ट लेना है, जहाँ ड्रग बाइंड हुआ है। बाइंडिंग साइट, हाँ करेक्ट है। तो हमको पता चल गया कि देखो कहाँ है, यहाँ है, यानी इसके इतना इतना एरिया जो है आजू बाजू वाला यही हमको डॉकिंग में लेना पड़ेगा। ये इधर वाला इतना बड़ा दूर का एरिया लेना पड़ेगा क्या, नो सर। नहीं, क्योंकि इसके साथ में तो इंटरेक्शन ही नहीं है उसका। हमारा मेन मोटिव यही पे रहेगा, लोकलाइज्ड एरिया। तो सबसे पहले ये फायदा है अगर कॉम्प्लेक्स है तो। अगर मान के चलिए कि आपके पास में ऐसा ड्रग बाइंड नहीं है तो फिर आप कौन सा पार्ट लेते हैं एक्टिव साइट का, बताइए, फिर मुश्किल हो जाती ना, मुश्किल हो जाती है कहाँ मुझे बाइंड करवाना है। इसलिए अगर कॉम्प्लेक्स है तो काम आसान हो जाता है। तो उसने क्या बोला, लेफ्ट क्लिक ऑन वन पेन, तो मैंने लेफ्ट क्लिक किया, वो सिलेक्ट हो गया। लेफ्ट क्लिक ऑन वन पेन इन अ ट्री व्यू टू सिलेक्ट द बेंजामिन रेसिड्यू। ये येलो कलर में है, इसका मतलब ये सिलेक्टेड है, इट शुड अपीयर येलो, हाँ है। देन सिलेक्ट edit hide unselected menu option or use the shortcut control U to hide all items that are not selected। अब क्या हो जाएगा, अगर अगली कमांड में क्या होगा, आपको बाकी सारे आइटम्स हट जाएंगे, सिर्फ बचा रहेगा बेंजामिन। तो ये करने के लिए देखिए पहले इधर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखो मैंने बताया था आपको, देखिए ये ग्रे इधर पहले क्लिक करिए और फिर क्लिक करिए कंट्रोल यू, ठीक है, कंट्रोल बटन दबाएंगे और यू। So the only atom showing on the screen should be benzamidine molecule। ये कौन है, benzamidine। Center the benzamidine in the window, ये ऑप्शन है सेंटर में, दिखा आपको, देखिए अब करेक्ट है, ये बेंजामिडीन है। अब समझ में आ गया सॉफ्टवेयर को कि ये बेंजामिडीन, नीचे आएंगे, while benzamidine is selected, जब बेंजामिडीन सिलेक्टेड मोड में है यानी येलो है, add hydrogen bond to it by holding down the shift button or by pressing the H। ठीक है, यहाँ H ऑप्शन है, देखिए उसको मैंने हाइड्रोजन अटैच कर दिया उसके अंदर। You should see something like this, देखो ऐसे दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा ही आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो अब मैंने सॉफ्टवेयर को दिखा दिया कि दिस इज व्हाट इज अ लिगैंड, ये कौन है, लिगैंड। अब मुझे इसके ऊपर ऑपरेशन करना है, राइट क्लिक ऑन वन पेन इन द ट्री व्यू एंड सिलेक्ट मेक अ लिगैंड ग्रुप फ्रॉम दिस रेसिड्यू ऑप्शन, ठीक है। यानी अब मैं सॉफ्टवेयर को बताने वाला हूँ कि ये कौन है, ये कौन है, ये ड्रग कौन है अभी बताएंगे, लिगैंड, ठीक है। तो इसको राइट क्लिक करेंगे और लिखेंगे मेक अ लिगैंड ग्रुप फ्रॉम दिस रेसिड्यू। जैसे मैं ये करता हूँ क्या होता है, देखिए Argus lab will construct a group underneath the group folder with the same name, one main, and that is of time ligand।
जैसे आपने इसको कॉपी किया ना, यहाँ से आपने बताया ना ये लिगैंड है, तो ये यहाँ पे ग्रुप में बन गया, देखिए जैसे यहाँ पे एक 1 में आ गया, यानी अब उसने स्ट्रक्चर की ग्रुपिज्म शुरू कर दी। अब ये पहला ग्रुप आ गया कि हाँ ये लिगैंड है, इतना पार्ट पूरा का पूरा क्या है, लिगैंड है। Then left click on either one bene residue in the residue miscellaneous folder or one bene in a group folder. Either action will select the atom on the ligand on the screen. देखिए किसी को भी क्लिक करेंगे तो भी वही आने वाला है। Then Control C and Control V, क्या करिए उसका, Control C और Control V कॉपी पेस्ट करिए, Control C and Control V। Look in the residue miscellaneous folder in the tree view tool. You will see a new highlighted residue with the name 810 bene। देखिए नया आ गया 810 bene। Make a ligand group of this new residue in the same manner you did above। यानी आप इसकी भी कॉपी बनाएंगे and right click on the 810 bene and make a ligand group of this residue। इसको फिर से क्या करेंगे, You should now see the two ligands, 1 bene and 2 bene। दिख रहा है आपको, यानी इसकी कॉपी बन गई। Rename the two ligands group। Right click on a 1 bene in the group folder and select modify group option। इसको राइट क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे मॉडिफाई ग्रुप। In the modified group dialog box, type in a new name. Let's call it as ligand X-ray। यानी ये ओरिजिनल है, ठीक है। And make sure you should not change the group type. It should remain ligand, okay? Say OK। In the same manner you do it for 2 bene। Right click on it, modify group, and now write down ligand, okay। तो होगा क्या ना, इसकी सराउंडिंग में वो सारे अमीनो एसिड्स है, दिखते नहीं है पर है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखो दो लिगैंड है या नहीं, ये चेक करना है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ। आ गया ना, दिख रहा है आपको, तो ये ओरिजिनल है। ये कौन सा है बताएंगे, इसका नाम क्या है, लिगैंड एक्सरे। लिगैंड एक्सरे। हाँ ये लिगैंड एक्सरे, और ये कौन है, लिगैंड। हाँ ये वहां जाके बाइंड करेगा उसके आजू बाजू, ठीक है, समझ रहे हैं। बट एक चीज याद रखिए, जब हम डॉकिंग करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल है ना ये गायब हो जाएगा डॉकिंग में से, ठीक है, समझ रहे। सिर्फ उसके अमीनो एसिड जो है प्रोटीन के उसके साथ ही इंटरेक्शन होगा, ऐसा नहीं होगा कि इसके साथ इसका इंटरेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये अभी भले यहाँ पे दिखता है पर वो इंटरेक्शन में नहीं रहेगा, ये हमेशा याद रखिए। पर ये दोनों देखिए एक जैसे दिख रहे हैं ना, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्या, डिस्टिंग्विश कर पा रहे कि कौन कौन सा है, कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे ना, तो हम उसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करेंगे आसानी से। So to distinguish more easily, we will go for the color changing, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, राइट क्लिक ऑन द ग्रुप नेम लिगैंड, राइट क्लिक करेंगे और इसका सेट रेंडर मोड चेंज कर देंगे टू द सिलेंडर मेट। देखिए थोड़ा सा मोटा हो गया, ठीक है, यानी अब आसानी से हम देख पाएंगे कि ये आपका लिगैंड है जो एक्चुअली डॉकिंग में इस्तेमाल करना है। तो पहला काम हो गया है, सॉफ्टवेयर को यानी डॉकर को ये समझ में आ गया है कि ये कौन है, लिगैंड है, ठीक है। अब अगला काम ये करना है कि बाइंडिंग साइट बतानी है। तो बाइंडिंग साइट किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, ये मॉलिक्यूल के ऊपर कि ये मॉलिक्यूल के ऊपर, लिगैंड एक्सरे डिसाइड करेगा या लिगैंड डिसाइड करेगा, बाइंडिंग साइट। बताइए,
लिगैंड एक्सरे हाँ, लिगैंड एक्सरे डिसाइड करेगा, ठीक है। क्यों लिगैंड एक्सरे डिसाइड करेगा? क्योंकि वो ओरिजिनल है ना। ये तो इसकी आपने कॉपी बनाई, ये ओरिजिनल नेचुरल पोजीशन है, अपन ने बताया ना तभी। नेचर है ना, नेचर है ना, वो ओरिजिनल है वहां पे, इसलिए वो खुद बताएगा कि क्या होता है। तो देखिए अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अगला काम है मेक अ बाइंडिंग साइट फॉर द लिगैंड एक्सरे ग्रुप। लिगैंड एक्सरे ग्रुप के लिए इसकी बाइंडिंग साइट, तो एक्सरे लिगैंड एक्सरे जो है वो बाइंडिंग साइट कैसे बनाएगा, तो उसके लिए एक तरीका ढूंढ के निकाला लोगों ने। कभी भी याद रखिए कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम अगर इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होता है, which में भी either रिपल्शन और अट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, पर उसका जो इन्फ्लुएंस होता है अपने जगह से, यानी अगर मान के चलो ये वाला छोटा सा एंगल ले लेते हैं, ये छोटा सा ग्रुप ले लेते हैं, एटम ले लेते हैं, ये अपनी जगह से 3.5 एंगस्ट्रॉम जो रीजन है उतना ही इन्फ्लुएंस कर पाता है। समझ रहे क्या आपको? हर एक एटम अपने 3.5 एंगस्ट्रॉम रीजन में ही किसी दूसरे एटम को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो वही सिस्टम यहाँ पे भी फॉलो की गई। आपका ड्रग यहाँ ऑलरेडी बाइंड है प्रोटीन के पास में, यहाँ पे दिख नहीं रहा है पर यहाँ प्रोटीन है, तो ये क्या करेंगे, इन्होंने एक ऐसा एल्गोरिदम डिजाइन किया जिसमें उन्होंने बताया कि हर एक एटम के 3.5 एंगस्ट्रॉम में जितने भी अमीनो एसिड्स है या उसके साइड ग्रुप्स है या फंक्शनल ग्रुप्स है, उनको यहाँ शोकेस करो और वो बन जाएगा क्या? बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट, करेक्ट, वो बन जाएगी बाइंडिंग साइट। तो इस लिगैंड एक्सरे के हर एक एटम के 3.5 एंगस्ट्रॉम के रीजन में जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे वो बनेगी आपकी एक्टिव साइट यानी बाइंडिंग साइट। समझ में आ गया? चलिए देखिए यहाँ पे, द इजी वे इज टू राइट क्लिक ऑन द लिगैंड एक्सरे ग्रुप इन द ग्रुप फोल्डर एंड सिलेक्ट मेक अ बाइंडिंग साइट। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे मेक अ बाइंडिंग साइट ग्रुप फॉर दिस ग्रुप। देखिए आ गया, समझ रहे हैं सबको? कितना एरिया, कितना एंगस्ट्रॉम का है? 3.5 हाँ, जिंदगी में भूलना नहीं, अब याद रखना। कभी भी आप हो सकता है फार्मा में कभी नौकरी में चले गए, कुछ हो गया तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। 3.5 एंगस्ट्रॉम एरिया में उस जितने भी अमीनो एसिड्स है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दिख रहे। अब ये बन गई आपकी क्या है ये? बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट, ठीक है, बाइंडिंग साइट। तो अब होने वाला क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो आपका ड्रग है ये एक्चुअली यहाँ से उठ के कहाँ आने वाला है? ओरिजिनल लिगैंड एक्सरे के पास। यहाँ पे आके घूमेगा वो, यहाँ पे आके वो अपनी पोजीशन लेगा और फिर इनसे इंटरेक्शन करने की कोशिश करेगा। और हम ये देखना चाहेंगे कि ये तो नेचुरल है, यानी नेचर ऐसा करता है, तो ये हमारा डॉकिंग सॉफ्टवेयर कितना उसको क्लोज लेके जाता है। समझ रहे क्या? जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना अच्छा डॉकिंग या बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो अब हमको ये समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर ये सारे अमीनो एसिड्स कौन से है ना, पता रहना चाहिए ना कि अमीनो एसिड्स कौन से। ये अगर आपको पता करना है तो ये जो यहाँ पे अमीनो एसिड्स लिखा हुआ है दिख रहा है, इसका प्लस विंडो है। ये प्लस विंडो को मैं जब कर रहा हूँ देखिए प्लस, तो ये जो ब्लू वाले दिख रहे हैं ना ये वो सारे अमीनो एसिड्स है। तो देखिए 221 पोजीशन पे जो एलानिन है, ठीक है, जो कॉइल में है वो यहाँ पे एक्टिव साइट में इन्वॉल्व हुआ है। कौन सा है देखना है तो देखिए, समझ रहे हैं, 221 नंबर का एलानिन है। उस तरह से 189 नंबर का एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्जिन है, सिस्टीन है, ठीक है। इस तरह से आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। ये सारे अमीनो एसिड्स यानी एक्टिव साइट्स को अगर आपको लिखना रहा तो ये सब लिखने पड़ेंगे कि ये सारे अमीनो एसिड्स एक्टिव साइट या बाइंडिंग साइट में इन्वॉल्व।
So this will generate a binding site that consists of all the residues that have at least one atom within a 3.5 angstrom from any atom in the ligand X. This generally gives a good representation of the important residues in the binding pocket. आपको अभी पता चल गया जो अभी हमने देखे. For the protein target. Center the molecule again. You should see something like this. Center करने के लिए इसको क्लिक कर दिया. ठीक है. Center the molecule. अच्छे से आपको दिखेगा. बस. अब सॉफ्टवेयर को समझ में आ गया. अब मुझे बताइए इसमें कितनी चीजें बताएंगे. डॉकर के पास में कितनी वैल्यूज है. डॉकर के पास क्या क्या है अभी बताएंगे. सर अमीनो एसिड्स, लिगैंड, एक्सरे मॉलिक्यूल एंड लिगैंड. वेरी गुड. अमीनो एसिड्स है ना, बाइंडिंग साइट है, लिगैंड है और लिगैंड एक्सरे है. वेरी गुड. समझ में आ गया. अब उसके पास 3 फाइल है. हमको जो अगला काम करना है वो कौन से 2 फाइल्स के साथ करना है. कौन से 2 फाइल्स के साथ करना है. बोलिए. लिगैंड एंड लिगैंड एक्सरे बाइंडिंग साइट. लिगैंड एंड लिगैंड एक्सरे बाइंडिंग साइट. वेरी गुड. करेक्ट है. लिगैंड एक्सरे को यूज करेंगे क्या. नो सर. नहीं, वो तो स्टैंडर्ड है. वो तो हट जाएगा ना कि रहेगा. नहीं सर, हट जाएगा. हट जाएगा. वो सिर्फ बचेगा कौन. 2 चीजें, लिगैंड और बाइंडिंग साइट. ये दोनों का अब होने वाला है डॉकिंग. यानी अब सॉफ्टवेयर को समझ में आ गया है कि ये जितने भी अमीनो एसिड्स है ये जो मॉलिक्यूल जो दूर रखा हुआ है ये इनका डॉकिंग करना है. ये यहाँ पे भले ही दिखता है पर ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा. नो सर. नो तो नहीं होगा. सो सॉफ्टवेयर को अब समझ में आ गया. सॉफ्टवेयर को आपको समझ में आ गया. अब सॉफ्टवेयर को बताना है एनर्जी कैलकुलेशन. अब आपको उसको बताना है कि कैलकुलेशंस कैसे करने हैं. ठीक है. तो सबसे पहली बात है कि अब वहां पे इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा. सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि नहीं आप डॉकिंग कराइए. यानी अब ऐसा हो गया है कि मियाँ बीवी आ गए हैं, वर वधू आ गए हैं, अभी भी शादी करवानी है तो उसको हॉल में लेके जाना है. जस्ट लाइक दैट ही है. तो चलिए कैविट. डॉकिंग को कहते हैं कैविट. व्हेन अ लिगैंड ग्रुप इज डॉकिंग. ठीक है. जब लिगैंड ग्रुप जो है डॉक होते रहेगा तो क्या होता है देखिए पता. It will ignore all other atoms that belongs to any other ligand groups that are present. समझा क्या. यानी जब ये डॉक हो रहा है तो ये सारा वो लिगैंड्स को भूल जाएगा, दूसरे लिगैंड्स को जो वहां पे प्रेजेंट है. यानी किसको भूल जाएगा. किसको भूलेगा. लिगैंड एक्सरे को भूल जाएगा. राइट. Thus you can dock multiple ligands into the same structure and can see the final result overlaid on each other. इसलिए आप ऐसे बहुत सारे ligands भी एक साथ डॉक करा सकते हो यहाँ पे. क्योंकि जब एक डॉक हो रहा है तो वो दूसरे को कंसिडरेशन में लेता नहीं है. However, if you forget to create a ligand group of the molecule that already occupies the binding site, it will adversely affect the result. वो हमने कर लिया. चलिए अब हमारा काम है डॉक करना. Bring the dock setting dialog box by selecting the calculation dock a ligand. ये इंडिकेटर है उसका. यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको क्लिक करें. तो ये हो गया डायलॉग बॉक्स. ठीक है. इसमें सबसे पहली बात है कि आपको लिगैंड चूज करना है. आपको बताना है कि किससे डॉकिंग करवानी है. ठीक है. Select the ligand to dock and that is what is the ligand. आपको यहाँ पे लेना है लिगैंड. ठीक है. लिगैंड एक्सरे नहीं लेना है. लिगैंड एक्सरे तो डॉक नहीं होने वाला. एंड नॉट द लिगैंड एक्सरे. Then click on the calculate size button and docking box. And the docking box tailored to binding sites will be made and shown on the screen. And make sure Argus dock is the docking. देखिए calculate size क्लिक करें. देखिए जैसे मैंने कैलकुलेट साइज किया तो ये बॉक्स बन गया. दिख रहा है. ये बॉक्स जो है ये ग्रिड है.
ये ग्रिड इतनी सुंदर है कि देखिए इसके बाहर कोई भी अमीनो एसिड नहीं गया, दिख रहा है आपको, है ना, एकदम एग्जैक्ट इनक्लोज्ड हो गया, ये बॉक्स बन गया, क्रिएट हो गया यहाँ पे। यानी अब इसी के अंदर, इस बॉक्स के अंदर ही आपका कैलकुलेशन होने वाला है, ठीक है। सो किया, कैलकुलेट साइज हो गया। हाँ, सो लिगैंड यहाँ बताना है, लिगैंड होना चाहिए, कैलकुलेट साइज हो गया है, और डॉकिंग इंजन जो है वो अर्गस डॉक ही लेना है। कैलकुलेशन टाइप जो है वो डॉक रखना है, और लिगैंड कौन सा है, लिगैंड कौन से टाइप का है, फ्लेक्सिबल। हाँ, यानी कौन से टाइप की डॉकिंग है, तभी बताया ना मैंने, कौन से टाइप की डॉकिंग है। अगर लिगैंड फ्लेक्सिबल है तो कौन सॉलिड है, प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन सॉलिड है, और लिगैंड फ्लेक्सिबल है। हाँ, पर अगर मैं लिगैंड रिजिड कर देता हूँ तो क्या होगा, कौन से टाइप का डॉकिंग होगा, सॉलिड सॉलिड। सॉलिड सॉलिड, करेक्ट है। और अगर हम इसको फ्लेक्सिबल करते हैं तो कौन से टाइप का होगा, सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड, करेक्ट है। ठीक है, तो अब हमने वो सब चीज कर ली है, प्रॉपर कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं एक बार कैंसिल करता हूँ इस चीज को, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा और बड़ा देखें अच्छे से, ठीक है, ठीक है, और अच्छे से करके फिर से एक बार सेटिंग करेंगे इसकी। आ गया, एंड कर देते हैं अर्गस डॉक डॉक इंजन, ठीक है। अब अब देखिए क्या होता है, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दिखा दिखा आपको, क्या दिखा क्या दिखा, ड्रग कहाँ के कहाँ चला गया, देखिए यहाँ ड्रग आ गया, नीचे अंदर आ गया, और अब ये है एक्चुअल बाइंडिंग नेचर की, और ये है आपका सॉफ्टवेयर ने बाइंड किया हुआ, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, तो ये डॉक हो गया यहाँ पे। तो ये जो है इंटरैक्शन हो गया आपके ड्रग का प्रोटीन के एक्टिव बाइंडिंग साइट से, ठीक है। अब मेन चीज जो देखनी है वो यहाँ है, ठीक है, क्या है ये देखना है। आपने अर्गस लैब वर्जन 4.0 इस्तेमाल किया, ठीक है, और लिगैंड्स के अंदर कौन से हाइड्रोफोबिक रीजन है और कौन से पोलर है, ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कितने पोजेस फॉर्म हुए, 150 पोजेस का स्टडी किया गया, ठीक है। आप चाहो तो उन पोजेस को बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। ये देखिए हाई प्रिसिशन और मैक्सिमम नंबर ऑफ पोजेस, मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, यानी जैसे हम कार में भी जाते हैं ना, तो हम एक शोरूम में जाके भी कार ले सकते हैं, 10 शोरूम घूम के भी कार ले सकते हैं, पर हम 10 शोरूम घूमते हैं तो हम हमारे में ज्यादा प्रिसिशन आएगा, हम एक ज्यादा स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी है, देखिए अभी देखिए मैं इसको फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ, इट विल टेक स्लाइटली मोर टाइम, ठीक है। दिखा आपको, और थोड़ा घुमा और उसने स्टडी किया, इस तरह से मैं और उसको प्रिसिशन में ला सकता हूँ, जितना मुझे चाहिए उतना प्रिसिशन में ला सकता हूँ।
देखिए कैलकुलेशन बढ़ते जा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे एनर्जी कितनी आ गई, -4 है, फिर -5 है। तो अल्टीमेटली ये जितने भी हमने पोजेस चलाए, पहले वाले ने कितना एनर्जी दिया था, पहले जिसमें -5.26 किलो कैलोरी, यानी ये बेस्ट पोज है, यानी ये बेस्ट बाइंडिंग एनर्जी। यानी आपका ड्रग जब इस इन अमीनो एसिड के साथ इंटरैक्ट करेगा, तो जब वो बाइंडिंग होगी, यानी जब वो इंटरैक्ट करेगा, तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो -5.26508 किलो कैलोरी पर मोल है। इसका मतलब है कि डॉकिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, ये डॉकिंग बहुत अच्छी है क्योंकि माइनस में जा रही है बाइंडिंग। अगर ये माइनस में है यानी उतना एनर्जी उसको नहीं लग रहा है एक दूसरे को साथ में रखने के लिए, समझ रहे। यानी ऐसा होता है ना कि जब कोई झगड़ालू मियाँ बीवी होती है तो हमेशा झगड़ा करके दूसरे के घर में चले जाते हैं, है ना, ससुराल चले जाते हैं, है ना, मायके चले जाते हैं, इस तरह से। फिर उनको साथ में रखने के लिए फिर से ससुराल वाले मायके वाले एनर्जी लगा के उनको साथ में भेजते हैं, तो ज्यादा दिन तक स्टेबल नहीं रह पाते। सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, पर अगर वो स्टेबल है तो उनकी एनर्जी कम रहेगी, यानी उनको ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी या इक्विवेलेंस में रहेगी। तो ये है आपका बाइंडिंग एनर्जी -5.2650। इसको QSAR भी कहा जाता है, ठीक है, इसको QSAR भी कहा जाता है, दैट इज डॉकिंग को और एक वर्ड है QSAR, यानी क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है, QSAR। तो हमने जो एक्चुअली अभी किया वो है एग्जैक्टली दोनों के स्ट्रक्चर ने जो एक दूसरे से एक्टिविटी की, एंड वो दोनों जब एक दूसरे से रिलेशनशिप में है, दैट हैज बीन कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, एंड दैट हैज बीन कैलकुलेटेड इन द क्वांटिटेटिव फॉर्म। क्वांटिटेटिव फॉर्म यानी क्या, रिपल्सिव माइनस अट्रैक्शन एनर्जी। जब दोनों मॉलिक्यूल यानी ड्रग और प्रोटीन के जितने भी एटम्स हैं जब एक दूसरे से पास में आएंगे, तो कुछ कुछ अमीनो एसिड्स जब किसी एटम के साथ में इंटरैक्ट करेंगे, तो कुछ अमीनो एसिड्स ड्रग के एटम के साथ में रिपल्सिव दिखाएंगे, यानी उसको नेगेटिव एनर्जी देंगे, तो कुछ होंगे जो उनको पॉजिटिव एनर्जी देंगे। तो ये दोनों का जो मिलाया और घटाया होता है, दैट इज प्लस एंड माइनस, और ओवरऑल जो वैल्यूज आती है वो होगी टोटल बाइंडिंग एनर्जी। तो ये जो QSAR है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन है, जो यहाँ शोकेस की गई, ठीक है। अब ये हमको यहाँ पे पता चल गया है, ठीक है, यहाँ पे वो आ गया है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी समझ गए ना सबको, यही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ऐसे अगर समझ लो 50 मॉलिक्यूल्स आपने टेस्ट किए, तो आप देखोगे कि 50 मॉलिक्यूल में किसकी सबसे अच्छी बाइंडिंग एनर्जी, जितना माइनस होते जाएगा उतना अच्छा बाइंडिंग एनर्जी है, और जितना प्लस में जाता जाएगा उतना कम बाइंडिंग एनर्जी ऐसा माना जाता है, ठीक है। चलिए अब तो यहाँ पे आपको पता चल गया। नाउ वी आर एनालाइजिंग द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स का एनालिसिस को पुट अप करना है। Let's see how close the dog structure is to the X-ray structure जो हमको देखना है। In this preview tool, select both the ligand and ligand X-ray group, ठीक है। कौन सा सिलेक्ट करना है, लिगैंड और लिगैंड एक्सरे को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट बटन दबाना पड़ता है, ठीक है। देखिए मैंने दोनों रेड आ गए, दोनों सिलेक्ट हो गए, देखिए, एंड ligand and by holding the control key and yes, both groups should highlighted on the screen, आपको दिख रहे हैं। Now right click on the group folder in the tab in the preview on the calculate RMSD। अभी ग्रुप फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है, ये ग्रुप इनके ऊपर नहीं, ग्रुप फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और क्या करना है, कैलकुलेट, ठीक है, RMSD। तो क्या करता है RMSD, बताएगा कोई मुझे, RMSD क्या करता है, अभी बताया था ना मैंने, RMSD का क्या मेन एम है,
एम क्या है आरएमएसडी का? वो बताता है कि आपके डॉकिंग जो आपने सॉफ्टवेयर में किया वो नेचर से कितना क्लोज है, ठीक है, और उनके बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। वो क्लिक करने के बाद में वो बताता है कि कितना डिफरेंस है, कितना है। RMSD रूट मीन स्क्वायर डेविएशन बिटवीन द टू ग्रुप्स इज 1.89, ठीक है। तो ओके ओके एंड इंफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, जैसे अभी आई थी। द वैल्यू शुड बी अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम, पर हमारी कितनी आई है 1.89, यानी उतना अच्छा डॉकिंग नहीं है पास वाला, बट ठीक है, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है उतना सेंसिटिव। बट आइडियली अगर अच्छे सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हो और हाई लेवल के, तो वो 0.5 एंगस्ट्रॉम के क्लोजनेस में लेके जाएंगे। ये पहला पार्ट हो गया। देन there are two sources of information about the docking calculation, ठीक है। तो डॉकिंग कैलकुलेशन हमने अभी कर लिया। अब यहाँ पे कैलकुलेशंस में आएंगे और यहाँ पे आपको पोजेस दिखते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिखते हैं? पोजेस। देखिए जो सबसे बेस्ट पोज है वो -5.27, जो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये बेस्ट पोज है। आप चाहो तो दूसरा पोज भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए दिख रहा है, ये -4.95 किलो कैलोरी पर मोल का है। यानी अगर प्रोटीन ड्रग इस तरह बाइंड होता है तो इसकी एनर्जी -4.95 है। अगर इस तरह बाइंड होता है तो 4.93 है, इस तरह बाइंड होता है तो 4.92 है। ऐसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब आप देखिए इसका RMSD जो है थोड़ा क्लोज लग रहा है मुझे, दिख रहा है क्या आपको? ये बहुत क्लोज है, देखिए। अब देखिए इसका RMSD कितना है। बढ़ गया है, 2.3 हो गया, ठीक है। हमको लगा कि पास है पर नहीं है, दूर है वो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन से। इस तरह से क्या करना पड़ता है, हर एक पोज का एक थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है कि वो कहीं नेचुरल से क्लोज तो नहीं है। इसका भी देख सकते, बढ़ गया 3.6 हो गया, दूर है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसका डॉकिंग का कैलकुलेशन कर सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपका ड्रग बीटा ट्रिप्सिन से कितने एनर्जी से बाइंड कर रहा है। तो ये वैल्यू लिख सकते हैं, जो बेस्ट थी -5.27, -5.27। आप चाहो तो उसको सेव कर सकते हैं, ये फाइल पूरी प्रॉपर्टी सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेविंग ऑप्शन भी है यहाँ। देन आप इसको सेव कर लीजिए, ठीक है, सेव एज, ठीक है, और ये आपके पास में सेव हो जाएगा एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा। सो दैट्स इट, दिस इज द डॉकिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, ठीक है। कर लिया और कुछ बचा नहीं है। लॉग फाइल है यहाँ पे, तो अभी हमने दिखाई, ठीक है, ठीक है, लॉग फाइल है। That's it. So this is finally you have you want to save all the work, then go to the save as option and choose the Argus Lab file, ठीक है। Argus Lab file choose करना, याद रखिएगा, save as और कौन सा फाइल? Argus Lab file, तभी ये सेव हो पाएगा, अदरवाइज ये सेव नहीं होगा। ये जो सेटअप है पूरा, ठीक है। PDB में अगर आप करेंगे तो सिर्फ PDB स्ट्रक्चर सेव करेगा पर पूरा डेटा सेव नहीं करेगा, ठीक है। ये Argus Lab ही हमेशा यूज करते हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसमें कोई डाउट है आपको, किसी को? ये आज आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आपने आज नहीं किया तो आप भूल जाओगे, नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, ओके।